Very good morning, friends. Yesterday, we started with the Companies Act and we discussed some of the chapters of Companies Act. These classes you can consider as our additional classes because this batch was to start from 25th. But since lot of people joined very early, so we thought let us start this batch and we combined it with the last batch. So all these discussions which are now going on, they will again take place when you reach the end of this batch, which will start from 25th of May, and we hope to finish this batch by 24th of June. So within 1 month we want to complete it. This is chapter 7. Chapter 7, it talks of management and administration. So there are sections 88 to 122. Some registers are to be maintained. Related provisions are given in section 88 to 81, 91 and 95. Annual return is to be filed. Related sections are 92 to 94. Meetings are to take place, meeting, quorum and all, chairperson, proxy. Sections 96 to 102 and 121. And the requisites of convening a meeting, sections 103 to 120. So this is the brief synopsis of management and administration. So registers. There are three types of registers basically, although there are a lot of registers. So register of members, it is in MGT1. Question can be asked. Okay, register of members is to be maintained in form number MGT1, MGT2 and all. Register of debenture holders, MGT2, and foreign register to file within 30 days from the date of opening of the register, MGT3. So these are the basically three types of registers. Any person holding beneficial interest has to make a declaration. Ben 1, Ben 2, Ben 3. We were talking of this 2-3 years back. So any person holding beneficial interest in shares, this is governed by 89(2). And members not having beneficial interest in the company, he may be a member, but he may not. He may be working on behalf of somebody else who is holding the beneficial interest. So there is a person who is a member but is not beneficial owner, 89(1). Any person who is holding beneficial interest but is not a member, 89(2). And any change in beneficial interest in 89(3). So they will file a declaration to company within 30 days and company will file a return to ROC within 30 days. So these are the provisions regarding now annual return. So annual return, as we know, it contains the information about company regarding registered office, business activities, shares, debentures, indebtedness, change since previous year, meetings, remuneration of directors and key managerial personnel, penalty or punishments, shares held on behalf of FIIs, foreign institutional investors. So these are the informations which are to be fed in annual return. Then section 94, it talks of that registers and returns are to be kept at registered office or where more than 1/10 members reside if it is approved by special resolution. You might be noting that we have made this presentation section wise because basically you should read from the bare code and that is the only way of reading. But just to facilitate a quick reading of the bare code, we have made this PPT. Then regarding meetings, there are certain prerequisites before meeting, during meeting and post meeting. Before meeting,
There should be 21 days clear notice, as we all know, and it will contain explanatory statement, and this notice is to be sent to members, directors, auditors, legal representative of deceased member, and assignee of insolvent member. Okay? So this is the precaution we have to take before meeting. During meeting, we have to take care of quorum, chairman, proxies, voting, and resolutions. And post meeting, we have to note down the minutes of meeting. We have to maintain and facilitate inspection of documents. Types of meetings. Normally 3 types of meetings: general meeting, board meeting, and class meetings. Meeting may be held with shorter notice. It was very popular during last year. Okay, you can hold meetings with shorter notice. So AGM, you can hold with 95% of members entitled to vote. If they agree to it, you can hold meetings with shorter notice. And other meetings, it is 95% of voting power. Then there are 2 types of businesses. We all sign balance sheets of companies, and we notice there are 2 types of businesses: ordinary business and special business. Only ordinary business is defined, and they say whatever is not covered in ordinary business is a special business. So ordinary business is consideration of financial statements, board of directors report, auditors report, declaration of dividend, appointment of directors in place of those retiring. So if any new is to be appointed, then it's a special business. Appointment of auditors and fixing their remuneration, it is always an ordinary business. And any business apart from the 4 cited above is special business. Quorum. Quorum is different for private company and public company. In private company, there could be 2 members. So quorum is 2. And in case of public company, number of members, if they are up to 1000, then the quorum is 5. And if the number of members is between 1001 to 5000, then the quorum is 15. And above 5000, it is 30. And if quorum is not present within half an hour, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place, or such other date, time and place as the board decides. So this is a stated fact that if quorum is not present within half an hour, meeting shall stand adjourned to the same day in the next week. मंगलवार को मीटिंग होनी थी 5 बजे शाम को, अगले मंगलवार को होगी 5 बजे उसी जगह पर. ठीक है. और अगर बोर्ड अदरवाइज डिसाइड करता है तो अलग बात है. एंड कंपनी टू गिव एटलीस्ट 3 days नोटिस टू मेंबर्स इंडिविजुअली और बाय एडवर्टाइजमेंट. ठीक है. और जो चेयरमैन ऑफ मीटिंग्स कैसे होगा, बाय शो ऑफ हैंड से कर लो या बाय पोल कर लो. कई में लड़ाई हो जाती है, नहीं जी कौन चेयरमैन बनेगा, तो बाय पोलिंग करा लो. प्रॉक्सी के लिए फॉर्म MGT 11 है. ही कैन वोट ऑन अ पोल बट ही हैज नो राइट टू स्पीक. ठीक है. एंड ही कैन आस्क एज प्रॉक्सी फॉर अप टू 50 मेंबर्स. एक आदमी के पास 50 तक की प्रॉक्सी हो सकती है, या अप टू 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स. फिर इफ ए सिंगल मेंबर holds more than 10%, his proxy cannot be a proxy for other member. किसी बंदे के पास मान लो 15% वोटिंग शेयर है, उसने कोई प्रॉक्सी दे दी, तो वो एक ही के लिए काम करेगा फिर प्रॉक्सी. ठीक है. उसमें 50 के लिए नहीं वो कर सकता. एंड प्रॉक्सी रिसीव्ड 48 hours बिफोर द मीटिंग इज वैलिड. ठीक है. वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है. इसमें क्या है, जो लिस्टेड कंपनी हैविंग मोर देन 1000 मेंबर्स, ये उनके लिए है. सेक्शन 108 इसकी बात करता है. सेक्शन 109 कहता है कि वोटिंग बाय पोल हो सकती है, और 110 कहता है वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट हो सकती है. ठीक है. अब डिमांड फॉर पोल कौन कर सकते हैं? तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर और ₹5 लाख पेड अप कैपिटल और सच आर अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब, ये पोल की डिमांड कर सकते हैं. एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96 बताता है इसके बारे में. ये दोनों में होनी है, पब्लिक कंपनी में भी होनी है और प्राइवेट कंपनी में भी होनी है, लेकिन 1% कंपनी में कोई एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं है. AGM टू बी हेल्ड बाय एवरी कंपनी एवरी ईयर. ठीक है. हर साल होनी है, हर कंपनी की होनी है. फर्स्ट AGM कब होनी है? विद इन 9 months. ये सब हम लोग जानते ही हैं, वैसे सिंपल प्रोविजन है. विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और जो 2 AGM के बीच में गैप कितना होगा? नॉट टू एक्सीड 15 months.
ठीक है। और इसमें 3 महीने की स्पेशल एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। तो रजिस्ट्रार में ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स फॉर स्पेशल रीजंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। ठीक है। तो फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स में, और जो 2 महीने 2 एजीएम के बीच में गैप है वो 15 महीने का है, और 3 महीने की एक्सटेंशन रजिस्ट्रार ग्रांट कर सकता है। फिर ईजीएम क्या है? ईजीएम है सेक्शन 100 में। तो द बोर्ड में वेर एवर इट डीम्स फिट इट कैन कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है। Provided that an extraordinary general meeting of the company other than of the wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। ठीक है। तो अगर मान लो कोई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है किसी की जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसकी तो मीटिंग बाहर हो सकती है। ठीक है। अदरवाइज मीटिंग जो है इंडिया में होगी, जो ईजीएम है। एंड बोर्ड शेल एट द रिक्वेजिशन मेड बाय इन केस ऑफ ए कंपनी। तो कितने मेंबर्स इसमें रिक्वेजिशन कर सकते हैं ईजीएम के लिए? ठीक है। तो जिस कंपनी की शेयर कैपिटल है उसके लिए अलग प्रोविजन है, जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए अलग है। जिसकी तो शेयर कैपिटल है, such number of members who hold on the date of the receipt of the requisition not less than 1/10 of such of the paid up share capital of the company as on that date carries the right of voting। ठीक है। और अगर मान लो शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में क्या होगा? नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वहां पर शेयर कैपिटल है, यहाँ पर वोटिंग पावर है। कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4। जो रिक्वेजिशन है मेड अंडर सबसेक्शन 2 इट शेल सेट आउट द मैटर्स फॉर कंसिडरेशन। भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप किस पर्पस के लिए बुला रहे हो? ठीक है ना। एंड शेल बी साइंड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट्स एंड सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है। इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ए वैलिड रिक्वेजिशन। भाई सबसेक्शन 2 में क्या वैलिड रिक्वेजिशन दे रही है? 10% कैपिटल वाले या 10% मेंबर्स। ठीक है, कि भाई ये मीटिंग बुलाओ। ठीक है। अब बता रहे हैं किस लिए बुलानी है। अगर बोर्ड नहीं बुलाता विद इन 21 days, उसको वैलिड रिक्वेजिशन मिल गई बोर्ड को, बोर्ड नहीं बुलाता मीटिंग। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? प्रोसीड टू कॉल ए मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन ऑफ दैट मैटर ऑन अ डे नॉट लेटर देन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिक्वेजिशन। द मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्वेजेंट्स देमसेल्फ। वो खुद अपनी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने मीटिंग के लिए रिक्वेजिशन दी थी वो मीटिंग खुद कर सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन। ठीक है। और ये जो मीटिंग होगी अंडर सबसेक्शन 4 इट शैल बी कॉल्ड एंड हेल्ड इन द सेम मैनर इन विच द मीटिंग इज कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द बोर्ड। ठीक है। और अगर कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं जो रिक्वेजिशन ने किए हैं मीटिंग में, दे शैल बी reimbursed to the requisitionist by the company and the sum so paid shall be deducted from any fees or other remuneration under section 197 payable to such of the directors who were in default in calling the meeting। ठीक है। जिन्होंने मीटिंग बुलानी थी उनका डिफॉल्ट था तो उनसे वो डिडक्ट हो जाएगा पैसा। कंपनीज अकाउंट्स रूल्स हैं, AOC 1, AOC 2, AOC 3, ये फॉर्म नंबर है। ये इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं या फॉर्म्स हैं जिसमें बैलेंस शीट या और चीजें, एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें जाती हैं। नफरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इट प्रोवाइड्स मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है। काम क्या है इसका? It has to monitor and enforce the compliance with accounting standards. It will oversee the quality of service rendered by the professionals. It will make recommendations to the central government on the formulation of accounting and auditing standards. इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। पार्ट टाइम या फुल टाइम मेंबर 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। और जो सिविल कोड में पावर होती हैं जैसे CPC में दिया हुआ है, वही सारी पावर्स इनके पास होंगी, नफरा के पास। अगर कोई आदमी पेनल्टी लगानी है किसी पर्सन पे, किस लिए लगाओगे? अगर उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस ठीक नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या देख रहे हैं? नफरा देख रहा है दे आर ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। तो अगर किसी इंडिविजुअल पे पेनल्टी लगानी है तो ₹1,00,000 और मैक्सिमम है
नॉट मे एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड। और फर्म्स के केस में 10 लाख से कम नहीं होगी और 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड। ठीक है। एंड अथॉरिटी टू प्रेस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर CSR से रिलेटेड सेक्शन है। कंपनीज कवर्ड कौन कौन सी हैं? नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर है 1000 करोड़ या ज्यादा, नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। और बोर्ड इसमें क्या होगा? जो CSR के लिए बोर्ड बनेगा, इसमें 3 और मोर डायरेक्टर्स होंगे। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और स्पेंडिंग रिक्वायर्ड कितना स्पेंड करना है CSR पर? एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग दी 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। और कहां पर करना है? ऑन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। सेक्शन 128 कहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं आपको एक्रूअल बेसिस पे रखनी। देखो कंपनी बहुत आसान है, इसमें क्या सिंपल सी बातें हैं। मेन चीज आपको ये देख लेनी है कि भाई जहां पर क्वेश्चन कहां बन सकता है, तो जहां पर क्वेश्चन बन सकता है उसको आपको याद रखना है। जैसे अभी वहां पर आ रहा था भाई रिक्विजिशन कौन कर सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, तो वहां क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना भाई, कितनी पेड अप कैपिटल या कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, इस तरह से। या आपको जो रजिस्टर्स रखने हैं वो कहां पर रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं रख सकते हो क्या? ठीक है ना, तो आपको वो देखना है। कुछ चीजें इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग की हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको एक्रूअल बेसिस पे रखनी, सबको पता है, डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है ना। और आपके पास ऑप्शन है टू मेंटेन अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का ये मतलब नहीं कि भाई खाली कंप्यूटर पर आपको रखने, वो तो ये है कि भाई आप बैक डेटिंग कोई नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। और इस पे अलग से प्रोविजन भी आ गया, वो अगले साल के लिए रेफर कर दिया फिलहाल। अकाउंट्स टू बी केप्ट फॉर 8 इयर्स अनलेस ए लेंथियर पीरियड इज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉर्मली आपको 8 साल तक अकाउंट्स रखने हैं। फिर 129 130 ये क्या कहता है? अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3। ठीक है। पुराने में शेड्यूल 6 होता था, अब ये शेड्यूल 3 है। और रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर करे तो आपके अकाउंट्स रीओपन भी हो सकते हैं। कब तक भेजनी है आपको मेंबर्स को? नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, 21 क्लियर डेज है ये। एंड टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, आपको 30 दिन के अंदर फाइल करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। ठीक है। अगर AGM में अडॉप्ट नहीं हुए तो भी विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। जो स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है तो दे आर स्पेसिफाइड इन दी कंपनीज एक्ट। ठीक है। और OPC क्या फाइल करेगी? OPC के लिए AGM करनी जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो OPC विल फाइल ए कॉपी विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और क्वालिफिकेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 25 ऑन कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशंस। कॉम्प्रोमाइज होता क्या है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि भाई कंपनी दे नहीं पा रही पैसे, ठीक है, तो क्रेडिटर्स या जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद ही एग्री कर लेते हैं आपस में कि भाई ऐसा है 100 में से चलो हम 70 पैसे ले लेते हैं। यही है कॉम्प्रोमाइज। और ऐसी स्कीम बना करके NCLT को अप्रोच करते हैं, NCLT उनकी मीटिंग फिक्स कर देती है। ठीक है ना। और उसके सुपरविजन में फिर ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स और अमेलगमेशन वाली स्कीम हो जाती है। बैकग्राउंड क्या है? पहले ये कंपनीज एक्ट 1956 में था। 7 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की ये वाले सेक्शंस के लिए। ये सेक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप बार बार इसका रेफरेंस IBC में देखेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये एलाइड लॉज पहले करा दिए आपको। उससे क्या होगा, क्योंकि जब आप IBC पढ़ोगे ना तो IBC में वो बात करेगा सेक्शन 230। अब आपने सेक्शन 230 नहीं पढ़ा तो पूरी बात समझ ही नहीं आएगी आपको। ठीक है। तो ऑन 7 नवंबर और बहुत सारे जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो भी हमारे IBC में आते हैं। कुछ यहाँ से निकल करके वहां चले गए हैं। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है IBC समझने के लिए। तो 7 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शंस 232, क्योंकि ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ये भी पार्ट्स में नोटिफाई हुआ था। ठीक है ना, कुछ सेक्शंस पहले हो गए फिर बार, इस तरह से ये हुआ हमारा 15 दिसंबर 2016 का। फिर भी इसमें रूल्स नहीं आए थे। फिर 14 दिसंबर को रूल्स आए इसमें, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड एमएलगम। अब IBC में भी वही हाल चल रहा है। IBC में भी क्या हो रहा है, कुछ जगह रूल्स आ गए हैं, कुछ रेगुलेशंस आ गए हैं, कुछ चल रहे हैं ऐसी तरह से। तो ये रूल्स जो इफेक्टिव थे ये 15 दिसंबर 2016 से।
ठीक है। तो 15 दिसंबर 2016 के बाद सारे जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और एमलगमेशन वाले मैटर हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डील होंगे। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि भाई किस किस के बीच में कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो सकता है, कंपनी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में, या एनी क्लास ऑफ देम, या बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। ठीक है। कौन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट? ठीक है। आपको ये CID वाली एप्लीकेशन डालनी है कहां पर? NCLT के पास। कंपनी भी डाल सकती है एप्लीकेशन, क्रेडिटर भी, मेंबर भी, एंड इन द केस ऑफ ए कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द लिक्विडेटर। ठीक है। तो इन केसेस में कोई भी आदमी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की एप्लीकेशन लगा सकता है NCLT के पास। ज्वाइंट एप्लीकेशन भी लगा सकती है। एक से ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व है, वो कहते हैं यार ये दोनों कंपनियां ठीक नहीं चल रही, हम दोनों को मर्ज कर देते हैं, अमेलगमेट कर देते हैं। ठीक है ना। तो सच एप्लीकेशन मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ सच कंपनीज बी फाइल्ड एज ए ज्वाइंट एप्लीकेशन। कंडीशंस क्या है फॉर सर्विंग ऑफ एप्लीकेशन इन सिचुएशंस वेयर एप्लीकेशन इज नॉट सर्व्ड बाय द कंपनी? भाई कंपनी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई, ठीक है, हमने यहाँ पढ़ लिया कि कंपनी भी लगा सकती है, क्रेडिटर भी लगा सकता है, मेंबर। मान लो क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड बाय द कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब NCLT। तो हमने ये पढ़ा कि भाई जब भी ये एप्लीकेशन लगेगी तो NCLT एक हियरिंग फिक्स करेगी। ठीक है ना। तो अगर कंपनी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो NCLT जो भी डेट फिक्स की गई हियरिंग के लिए, उससे पहले 14 दिन पहले एक क्या देगी? कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ एडमिशन एंड ऑफ द एफिडेविट, कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन आई थी, ये एप्लीकेशन हमने एडमिट कर ली है, ठीक है, और ये एफिडेविट आया, इट शैल बी सर्व्ड ऑन द कंपनी एंड वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप ऑन इट्स लिक्विडेटर। ठीक है। क्योंकि लिक्विडेशन में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर भी खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो वहां लिक्विडेटर ही होलसेल होता है। तो अगर लिक्विडेशन में चल रही है तो लिक्विडेटर के पास जाएगी, अगर लिक्विडेशन में नहीं चल रही तो जो भी कॉपी आई है ऑफ नोटिस ऑफ एडमिशन और ऑफ द एफिडेविट, ये भी कंपनी को सर्व करेगा NCLT एटलीस्ट 14 days, जो भी उसने डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की है। और the applicant shall also disclose to the tribunal in the application the basis on which each class of members or creditors have been identified for the purpose of approval of the scheme। क्योंकि इसमें क्लास की भी बात है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स भी स्कीम लगा सकते हो, तो किस बेसिस पे उन्होंने उस क्लास को आइडेंटिफाई किया है ये भी आप ट्रिब्यूनल को बताओगे। फॉर्मेट क्या है? तो एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट विल बी सबमिटेड इन फॉर्म NCLT 1। इसके साथ क्या क्या लगेगा? एक तो नोटिस ऑफ एडमिशन लगेगा इन फॉर्म नंबर NCLT 2, एक एफिडेविट लगेगा NCLT 6, और फिर कॉपी ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, पूरी स्कीम बना के देंगे। ठीक है। एंड ए डिस्क्लोजर इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट इंक्लूडिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी, एक तो लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है, कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या, फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ एनी इंक्लूडेड इन दी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ठीक है। तो अगर उसमें कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में जाएगी। फिर जो एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसेंटेड टू बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू। अगर कोई CDR की स्कीम है तो उस केस में क्या होगा? 75% हैव टू एग्री। ठीक है। इन वैल्यू इंक्लूडिंग ए क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन फॉर्म CAA1, फिर सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। भाई 75 एग्री कर रहे हैं, 75 का मतलब हो सकता है 80 एग्री करें, 80 एग्री करेंगे तो बाकी 20 के उन्होंने क्या सेफगार्ड्स लिए हैं टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, वो भी उसमें बताया जाएगा। रिपोर्ट बाय द ऑडिटर कि जो फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग एज अप्रूव्ड शैल कंफर्म टू द लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड टू देम बाय द बोर्ड। ठीक है। एक ये भी रिपोर्ट जाएगी। And when the company proposes to adopt the CDR guidelines specified by RBI, a statement to that effect। और फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड द प्रॉपर्टी एंड ऑल एसेट्स टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, मूवेबल एंड इमूवेबल ऑफ द कंपनी बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है। And the applicant shall also disclose to the tribunal in the application the basis of identification of each class of members or creditors for the purpose of approval of the scheme।
उसके बाद ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाएगा, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आ गई, कंपनी ने दी, क्रेडिटर्स ने दी, मेंबर्स ने दी, ठीक है ना, या सिक्योर्ड क्रेडिटर दी 75%। उसके बाद मीटिंग बुलाई जाएगी। अपॉन हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल शेल अनलेस इट थिंक फिट फॉर एनी रीजन टू डिसमिस द एप्लीकेशन। भाई ट्रिब्यूनल या तो डिसमिस करेगा या एडमिट करेगा, ठीक है ना। अगर डिसमिस नहीं करता तो इट विल गिव सच डायरेक्शंस ऑर्डर as it may think fit in respect of meeting of the creditors or class of creditors or of the members or class of members as the case may be, to be called, held and conducted in such manner as prescribed in as follows. टाइम प्लेस फिक्स कर लेगा मीटिंग या मीटिंग्स का, एक चेयरपर्सन उसमें अपॉइंट कर देगा या स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर देगा फॉर द मीटिंग और मीटिंग्स टू बी हेल्ड एज द केस में बी एंड फिक्सिंग द टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन। ये जो चेयरमैन है, ये चेयरमैन कोई बोर्ड वाला चेयरमैन नहीं है, ये जो है ये चेयरमैन अलग अपॉइंट कर रहा है, ये एनसीएलटी अपॉइंट कर रही है, ठीक है। नोटिस टू बी गिवन ऑफ द मीटिंग और मीटिंग्स एंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सच नोटिस। Determining the value of the creditors or the members or the creditors or members as the case may be whose meetings have to be held, ठीक है। वो सारी चीजें स्कीम में दी होती हैं, लेकिन ये फिर भी उसको से अलग से हाईलाइट करते हैं। Determining the value of the creditors or the members or the creditors or members of any class as the case may be whose meetings have to be held, ठीक है। भाई उनकी वैल्यूज क्या क्या है, नोट, क्योंकि उस हिसाब से वोटिंग होनी है। नोटिस टू बी गिवन टू सेक्टोरियल रेगुलेटर्स, ठीक है। जो अगर मान लो पावर सेक्टर की कंपनी है तो उसको भी नोटिस चला जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर की है तो आईआरडीए को चला जाएगा, लिस्टेड है सेबी को चला जाएगा, ठीक है। जो भी सेक्टरल रेगुलेटर्स है या अथॉरिटीज हैं एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 230, तो उनको भी सबको नोटिस जाता है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। द टाइम विद इन विच द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये सारे मैटर्स आपका जो नोटिस है उसमें चले जाते हैं कि भाई ये मीटिंग बुलाओ और उसमें ये चीजें वो करते हैं डिसाइड। सर सीडी हिमसेल्फ सीडी हिमसेल्फ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 230, हाँ 230 कर सकता है, क्यों नहीं, हाँ वो तो है, कंपनी भी कर सकता है। एंड सीजी है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली चक्करों में नहीं पड़ती। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होगी तो ही तो पड़े करेगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली नहीं करती, या तो मेंबर्स या क्रेडिटर्स, नॉर्मली यही होते हैं इसमें जो दो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स के लिए, क्योंकि अब दे हैव टू फॉरगेट द इंटरेस्ट ना। भाई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब ये है कि भाई या तो हमें कम पैसे दे देना या इस तरह से दे देना, आप नहीं दे पा रहे। ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आता क्यों है, कंपनी के पास पैसे नहीं होते, है ना। तो वो जो क्रेडिटर्स है या मेंबर है वो कहते हैं यार कंपनी को निकालना तो है ही, वरना वैसे ही लिक्विडेट हो जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, स्कीम लेके आ जाते हैं, भाई ऐसे है हमारे पैसे आप इस तरह से दे देना, ये है। तो नोटिस ऑफ मीट, हाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या 237 में कर सकती है? अभी 237 में पहुंचे नहीं, हम पहुंचेंगे। हाँ, नोटिस ऑफ मीटिंग, द नोटिस ऑफ मीटिंग पर्सन टू द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू बी गिवन इन फॉर्म CAA 2, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन जा रही है CAA 1 में, ठीक है। ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन जा रही है NCLT 1 में, और क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है फॉर्म CAA 1, और ये CAA 2 है नोटिस ऑफ मीटिंग परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। किन किन को नोटिस मिलेगा, ये इंडिविजुअली मिलेगा टू ईच ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स एंड द डिबेंचर होल्डर्स एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी, ठीक है। कौन कौन लोग नोटिस भेज सकते हैं, जो चेयरमैन ऑफ द कंपनी है, एंड इफ द ट्रिब्यूनल सो डायरेक्ट बाय द कंपनी और इट्स लिक्विडेटर और बाय एनी अदर पर्सन। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस क्या होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, या ईमेल, बाय हैंड डिलीवरी और बाय एनी अदर मोड। डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने हैं नोटिस के साथ में, बहुत सारे हमारे जो कई लोग हैं जो जैसे कंपनियों में शेयर्स वगैरह होल्ड करते हैं, तो कई बार ये स्कीम आती है, पूरे पूरे गट्ठर आ जाते हैं, पूरा पूरा लंबा चौड़ा पैकेट आता है जी, ये हमारी स्कीम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम। The notice of meeting send with the copy of the scheme of compromise arrangement and following below mentioned details of C&A if not included in the said scheme, ठीक है। क्या क्या आएगी, details of the order of the tribunal, directing the calling, convening and conducting of the meeting, date of the order, date, time and venue of the meeting। फिर डिटेल्स ऑफ द कंपनी, उसका सिन नंबर, GLN नंबर, पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक है, प्राइवेट है, OPC है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, और समरी ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स, मेन बिजनेस कैरिड ऑन बाय द कंपनी, चेंज ऑफ नेम कब हुआ था, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, पूरी हिस्ट्री जाएगी उसकी। फिर जो स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पर वो लिस्टेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसकी, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप,
और नेम्स ऑफ द प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर एड्रेसेस। ये सारी डिटेल आपको किसके साथ भेजनी है? नोटिस के साथ में। ठीक है कि भाई इस दिन ये मीटिंग है और ये उसकी डिटेल है। रिलेशनशिप इन केस ऑफ कंबाइंड एप्लीकेशन, हाँ आपको बताया भाई दो कंपनीज में मिलकर एप्लीकेशन लगा सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर इफ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट रिलेट्स टू मोर देन वन कंपनी, then the fact and details of any relationship subsisting between such companies who are parties to such scheme of compromise or arrangement, including holding subsidiary or of associate company, तो ये भी डिटेल इसमें जाएंगे। फिर disclosure about effect of C&A on material interests of directors, KMPs and debenture trustee, ये भी चीज इसमें जाएगी कि ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाली स्कीम है इसका इनके मटेरियल इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। Details of board meetings, names of the directors who did not vote or participate on such resolution, names of the directors who voted against the resolution, names of the directors who voted in favor of the resolution, date of the board meeting at which the scheme was approved by the board of directors। ठीक है। Explanatory statement disclosing details of the scheme of compromise or arrangement including parties involved, in case of amalgamation, merger, appointed date क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है, शेयर एक्सचेंज रेशो क्या है एंड अदर कंसिडरेशन। ठीक है। अपॉइंटेड डेट नॉर्मली वो डेट रहती है जहां पर ये चीजें एमेलगमेट होती हैं और ये फिर ये स्कीम कब से इफेक्टिव होगी, वो इफेक्टिव डेट है। फिर शेयर एक्सचेंज रेशो, मान लो दो कंपनी एमेलगमेट होनी है या मर्जर होना है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई एक कंपनी खत्म हो जाती है तो दूसरी कंपनी में उसको शेयर्स कितने मिलेंगे, क्या एक्सचेंज रेशो रहेगी, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। समरी ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि बेसिस ऑफ वैल्यूएशन को आपको चैलेंज किया जाता है इसमें। जो कॉम्प्रोमाइज वगैरह की स्कीम्स होती हैं इसमें जो कोर्ट केसेस आते हैं वहां पर यही होता है कि इन चीजों को चैलेंज किया जाता है कि जी जो वैल्यूएशन है वही इनका गलत था जी। And the declaration that the valuation report is available for inspection at the registered office. Details of capital or debt restructuring, rationale for the compromise or arrangement, and benefits of the compromise or arrangement as perceived by the board of directors to the company members, creditors and others. फिर amount due to unsecured creditors, क्योंकि secured creditors ला रही है स्कीम 75% से ज्यादा। ठीक है। फिर disclosure about the effect of the compromise or arrangement, केएमपी पर, डायरेक्टर्स पर, प्रोमोटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नॉन प्रोमोटर मेंबर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी एंड डिबेंचर ट्रस्टी, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। कुछ और डिटेल्स भी जानी है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या पेंडिंग है, अप्रूवल्स, सैंक्शंस इफ एनी फ्रॉम रेगुलेटरी और एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिक्वायर्ड, रिसीव्ड और पेंडिंग फॉर द प्रपोज स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। जैसे पहले मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता था, ठीक है ना, एमआरटीपी कमीशन, अब क्या हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे ये मर्जर अमेलगमेशन में क्या होता है कि कंपटीशन कमीशन से भी अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई इट विल नॉट रिजल्ट इनटू मोनोपोली, ठीक है ना, तो उसका 1 ईयर का पीरियड रहता है। तो इस टाइप से कोई भी अगर आपको अप्रूवल लेनी है तो उसकी भी डिटेल्स आपको इसमें डालनी है। एंड अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द पर्सन्स टू हुम द नोटिस इज सेंट मे वोट इन द मीटिंग आइदर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सीज or where applicable by voting through electronic means. Copy of the valuation report. अब उसके बाद में कि भाई ये चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, डिटेल्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये भाई यहाँ से आप कॉपी ले सकते हो क्योंकि स्कीमें होती है लंबी लंबी। तो डिटेल्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और फॉर मेकिंग और ऑब्टेनिंग कॉपीज फॉर और फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है। Latest audited financial statements including consolidated financial statements, copy of the order of the tribunal in persons of which the meeting is to be convened or has been dispensed with, ठीक है, copy of scheme, contracts or agreements material to the compromise or arrangement, and certificate issued by the auditor of the company to the effect that the accounting treatment if any proposed in the scheme of compromise or arrangement is in conformity with the accounting standards prescribed under section 133 of the Companies Act. Such other information and management believes necessary and relevant for making decisions for or against the scheme. फिर एडवर्टाइजमेंट, ये जो नोटिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिक नोटिस के थ्रू जाएगा एडवर्टाइजमेंट में, फॉर्म CAA2 है इसके लिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है उसमें। वहां पर क्या होगा, एक तो टाइम होगा
within which copies of the compromise shall be made available to the concerned persons free of charge from the registered office of the company. ठीक है, and such newspaper shall be published on the website of the company. ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट होगी ये वेबसाइट पर भी पब्लिश होगी एटलीस्ट 30 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर मीटिंग एज डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल. एंड केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये जो नोटिस है या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेबी या स्टॉक एक्सचेंज जहां पर भी कंपनीज की सिक्योरिटीज लिस्टेड है वहां पर भी जाएगा. फिर नोटिस टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ये जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है इनको नोटिस जाएगा फॉर्म CAA 3 में. सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC, इनकम टैक्स, RBI, सेबी, कंपटीशन कमीशन, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस, अदर सेक्टरल रेगुलेटर्स, ठीक है ना, IRDA है या अपना ये जो ये होती है अपना इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये सबको नोटिस जाएगा. नोटिस शैल बी सेंट टू द ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी आफ्टर सेंडिंग ऑफ नोटिस टू मेंबर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय स्पीड पोस्ट और बाय कोरियर और बाय हैंड डिलीवरी. तो इन सबको नोटिस जाना है. रिप्रेजेंटेशन, कोई भी अथॉरिटी अगर चाहती है तो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस. ठीक है, और ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन अगर ट्रिब्यूनल को मिलता है तो उसकी कॉपी जो है कंसर्न कंपनी को भी भेजी जाएगी. और अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता 30 दिन के अंदर तो ये मान लिया जाएगा भाई कोई रिप्रेजेंटेशन इनका नहीं है. अब मीटिंग होनी है, ठीक है, आपने मीटिंग बुला ली, नोटिस दे दिया, अब वोटिंग होनी है. द पर्सन्स टू हुम द नोटिस इज सेंट मे वोट इन द मीटिंग. ठीक है, पर्सनली भी वोट कर सकते हैं, थ्रू प्रॉक्सीज भी वोट कर सकते हैं, बाई पोस्टल बैलेट भी वोट कर सकते हैं टू द अडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस. लेकिन होता क्या है, जितना सिंपल नजर आता है ना उतना होता नहीं है भाई. वोटिंग में क्या होता है, प्रॉक्सीज अलाउड है. प्रॉक्सी क्या करता है भाई, एक शेयर है वो A एंड B के नाम में, कुछ शेयर उसके बाद A के नाम में, कुछ शेयर B एंड A के नाम में. एक B से वो प्रॉक्सी ले आया तो कह देगा जी A, हाँ जी मैं हूँ, A एंड B, हाँ जी हूँ, B एंड A, हाँ हूँ. ठीक है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स तो कम हो जाते हैं और जो वोटिंग है उनकी ज़्यादा हो जाती है अगर वैल्यू में लिखोगे तो इन पर भी केस लॉज आएंगे. बहुत सारे केस लॉज इसमें आते हैं, हमें यहाँ तो नहीं पढ़ने, खैर वो हमें वैल्यूएशन में पढ़ने होते हैं, लेकिन इन पे भी मतलब वोटिंग वगैरह पे भी बड़ा कंटेंशियस इश्यू रहता है. फिर राइट ऑफ ऑब्जेक्शंस, तो एनी ऑब्जेक्शन टू द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड ओनली बाय पर्सन्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग या हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो ऑब्जेक्शन ये लोग कर सकते हैं. फिर और कंडीशंस क्या हैं फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, तो कॉपी ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट टू बी फर्निश्ड बाय द कंपनी. तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग shall furnish a copy of scheme of compromise arrangement and copy of statement required to furnish in section 232C within 1 day of requisition. Affidavit of service, liability to service, जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ, ये चेयरपर्सन कौन अपॉइंट कर रहा है, NCLT, appointed for the meeting of the company or other person directed to issue the advertisement and the notices of the meeting. ये जो लोग हैं ये एक एफिडेविट फाइल करेंगे बिफोर द ट्रिब्यूनल एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द मीटिंग और द डेट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द मीटिंग्स. ठीक है, कई बार होता है कि भाई 4 मीटिंग होगी तो फर्स्ट मीटिंग से पहले, स्टेटिंग दैट द डायरेक्शंस रिगार्डिंग द इशू ऑफ नोटिसेस एंड द एडवर्टाइजमेंट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद. तो ये एक एफिडेविट देंगे. सेकंड स्टेप क्या है, रिजल्ट ऑफ मीटिंग. फिर थर्ड क्या आ गया, कॉपी ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट टू बी फर्निश्ड बाय द कंपनी. मेथड ऑफ वोटिंग क्या होगा, तो ये वोटिंग एट द मीटिंग और मीटिंग्स हेल्ड इन पर्सन्स ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन ऑल रेजोल्यूशंस शैल टेक प्लेस बाय पोल और बाय वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ये जो रिपोर्ट है ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द मीटिंग ये जाएगी फॉर्म CAA 4 में. इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, number of members or class of members other case may who were present, who voted at the meeting either in person or by proxy, and where applicable who voted through electronic means their individual values and the way they voted. ठीक है, ये सारी रिपोर्ट आपको CAA 4 में भेजनी है. फिर रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग बाय चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन है ऑफ द मीटिंग shall be the time fixed by the tribunal or where no time limit has been fixed within 3 days after the conclusion of the meeting submit a report to the tribunal on the result of the meeting in
फ्रॉम CAA 4, ठीक है। तो CAA 4 में ये सब बातें हमने देख ली। बाइंडिंग ऑफ अप्रूवल, so where at a meeting majority of persons representing 3/4 in value of the creditors or a class of creditors or members, as the case may be, voting in person or by proxy or by postal ballot, agree to any compromise or arrangement, and if such compromise or arrangement is sanctioned by the tribunal, ठीक है, 3/4 एग्री कर रहे हैं और ट्रिब्यूनल ने भी सैंक्शन कर दिया, तो ये बाइंडिंग हो जाएगा ऑन द कंपनी, ऑल द क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स एज द केस में बी, or in the case of a company being wound up, on the liquidator and the contributors of the company. थर्ड स्टेप क्या है इसमें? ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो वोटिंग हो गई, रिपोर्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट का CAA 4 में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंफर्मेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ट्रिब्यूनल से। पिटिशन बिफोर कंफर्मिंग कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। Company shall, within 7 days of the filing of the report by the chairperson, present a petition to the tribunal in form CAA 5 for sanction of the scheme. ये अब ये petition जारी है for sanction of the scheme, ठीक है। And the petitioner will pray for the appropriate orders and directions from the tribunal. फिर right of creditor to file the petition. अगर कंपनी फाइल नहीं करती पिटिशन को, ठीक है, for confirmation of the compromise or arrangement, it shall be open to any creditor or member as the case may be, with the leave of the tribunal to present the petition, and the company shall be liable for the cost thereof, ठीक है। फिर नोटिस ऑफ हियरिंग बाय द ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल जो है हियरिंग की डेट फिक्स कर लेगा, और नोटिस ऑफ द हियरिंग है इट शैल ऑल्सो बी सर्व्ड बाय द ट्रिब्यूनल। किस किस को? जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। ऑब्जेक्ट किन्होंने किया था? 10%, ठीक है, हमने पढ़ा कौन लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज हु हैव मेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना भाई। जैसे इनकम टैक्स है, GST वगैरह, जैसे उनको 30 दिन का टाइम होता है रिप्रेजेंटेशन का, अगर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था तो उनको भी ये नोटिस जाएगा, ठीक है। ये क्या है? नोटिस ऑफ हियरिंग है। फिर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, वो नोटिस ऑफ मीटिंग था, ये नोटिस ऑफ हियरिंग है। द नोटिस ऑफ द हियरिंग, भाई मीटिंग हो गई, वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद में रिजल्ट आ गए, रिजल्ट के बाद में इन्होंने क्या किया? पिटीशन लगा दी कि जी हमारी स्कीम आप मान लो, ठीक है, एडमिट कर लो, सैंक्शन कर दो, अप्रूव कर दो। उसके अब ये उसका नोटिस जा रहा है। द नोटिस ऑफ हियरिंग शैल बी एडवर्टाइज्ड इन द सेम न्यूज़पेपर इन विच द नोटिस ऑफ द मीटिंग वाज एडवर्टाइज्ड, और इन सच अदर न्यूज़पेपर एज द ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट, एटलीस्ट 10 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग। और अगर ट्रिब्यूनल जो है सैंक्शन कर देता है तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर के लिए भी फॉर्म है CAA 6, एंड द ऑर्डर शैल इंक्लूड सच डायरेक्शंस इन रिगार्ड टू एनी मैटर और सच मॉडिफिकेशंस इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एज द ट्रिब्यूनल में थिंक फिट टू मेक फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। फिर फाइलिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ये जो ऑर्डर होगा ट्रिब्यूनल का, इट विल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर और such other time as may be fixed by the tribunal। फिर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है? अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई ये जो स्कीम सैंक्शन की है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती सेटिस्फैक्टरीली विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस एंड कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, तो वो क्या करेगा? इट विल मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड सच एन ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 273। ये शेड्यूल ऑफ फीस है, हमने पढ़ा था ना, शेड्यूल के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये है फीस। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनके लिए 1000 रुपये फीस है। अपील है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर एनी सर्कुलर 2000 रुपये, और एप्लीकेशन के लिए स्कीम है 5000। ये फिर कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशन के रूल्स हैं। ये रूल्स में ये फॉर्म है, ये जैसे क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है CAA 1 में जाएगी। ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर ली है नॉर्मली, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अरेंजमेंट का मतलब ये है कि इट इज ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल, या तो कंसोलिडेट कर देंगे या डिवीजन कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है? 10%, ठीक है। persons holding not less than 10% of the shareholding या persons having outstanding debt amounting not less than 5%, ठीक है। ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, हमने एक टेबल बना करके इसको दे दिया है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या है? 3/4 इन वैल्यू।
हाउ टू इंश्योर कंप्लायंस, इज ये सर्टिफिकेट चला जाएगा फ्रॉम कंपनी ऑडिटर। टाइम लिमिट कितनी है, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। फिर सर्कमस्टांसेस फॉर कॉलिंग ऑफ ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, इसमें 90 एटलीस्ट 90% इन वैल्यू एग्री एंड कंफर्म बाय वे ऑफ एफिडेविट टू द स्कीम। और लिस्टेड कंपनी जो है टेक ओवर ऑफर है, इट शैल बी एज पर द रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय सेबी। और प्रोविजंस अप्लाई टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कंट्रीज एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन amalgamate 2 or more companies? Yes. Where it is essential in the public interest that 2 or more companies should amalgamate, so central government can also amalgamate 2 or more companies. Form for making an application under section 230 subsection 1 NCLT 1 है, ठीक है। क्या minor can be appointed as a proxy? No. ठीक। फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स है, इसमें कुछ फॉर्म्स है, फॉर्म्स आप पढ़ लीजिएगा, है ना। फॉर्म ए है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए वैल्यूअर, फॉर्म बी है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए वैल्यूअर बाय पार्टनरशिप एंटिटी। क्योंकि जो ड्राफ्ट वैल्यूअर्स बिल है हमारा अभी वो पेंडिंग है, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, तो यहीं पर ही चल रहा है कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स। अगर पार्टनरशिप एंटिटी है तो फॉर्म बी में अप्लाई करना है, इंडिविजुअल है तो फॉर्म ए में अप्लाई करना है। सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म सी में, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन फॉर्म डी में होगी, और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन एज ए आरवीओ मिलेगा आपको फॉर्म ई में, ठीक है। अगर वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, जैसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स अमेलगमेशन में हमने देखा कि भाई वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, अगर वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है तो वैल्यूअर कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय द ऑडिट कमेटी और इट्स एब्सेंस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। और जो वैल्यूअर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, इट शैल नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट्स इन व्हिच ही हैज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे हमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में भी पढ़ते हैं कि जिसका भी अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, और बिकम सो इंटरेस्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग और आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए। अगर 247 का कॉन्ट्रावेंशन करता है वैल्यूअर तो 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक पेनल्टी है। सेक्शन 247 क्या है, इंटेंशन टू डिफ्रॉड द कंपनी और इट्स मेंबर्स, इट शैल बी पनिशेबल विद फाइन, ठीक है। इंप्रिजनमेंट है अप टू 1 ईयर, फाइन है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। अगर वैल्यूअर का कन्विक्शन हो जाता है तो जो उसको फीस दी गई उसका क्या होगा, ठीक है भाई, कि वैल्यूअर ने वैल्यूएशन कर दी, पता चला वैल्यूएशन ही गलत कर दी फ्रॉड करने के लिए, एक तो उसको जो पैसे लिए वो वापस करने पड़ेंगे, and he will pay damages to the company or he shall pay for damages to any other person. अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 458। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद 3 years एक्सपीरियंस, बैचलर्स डिग्री एंड इक्विवेलेंट विद 5 years एक्सपीरियंस, या मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट विद 3 years एक्सपीरियंस। फीस पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नॉन डिफरेंडेबल एप्लीकेशन फीस है 5,000 इन फेवर ऑफ द अथॉरिटी। फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है एनेक्सर 1 ऑफ द वैल्यूएशन रूल्स में दिया हुआ है, एंड हु मे कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू बी नोन एज कमेटी टू एडवाइज ऑन वैल्यूएशन मैटर्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई वैल्यूएशन की कमेटी भी बना सकती है, इट विल बी नेम्ड एज कमेटी टू एडवाइज ऑन वैल्यूएशन मैटर्स। फिर इसके बाद में आते हैं कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये STK से शुरू होते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, द रजिस्ट्रार शैल सेंड ए नोटिस टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी इट हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 year, कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एंड द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो रजिस्ट्रार इन केसेस में कंपनी को नोटिस भेजेगा और सारे डायरेक्टर्स को। कंपनी सुओ मोटो भी फाइल कर सकती है एप्लीकेशन फॉर रिमूविंग इट्स नेम, अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज एंड बाय ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ 75 मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये वाला प्रोविजन ये यहाँ से हट करके शेड्यूल 11 में IBC में अमेंडमेंट हो गई, ये वहां पर चला गया अब IBC में, ठीक है, प्रोविजन वही है, ये वॉलंटरी लिक्विडेशन है। ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार नोटिफाइंग ए कंपनी एज डिसॉल्व, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 248 इट मे बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years from the date of the order of the registrar। और मैक्सिमम टाइम अवेलेबल क्या है, टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय ए कंपनी, सो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 years from the publication in the official gazette of the notice under section 248।
ठीक है, तो आपको 20 साल तक कंपनी आप रिवाइव कर सकते हो। एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रिमूव द नेम ऑफ ए कंपनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 248। क्या है? लिस्टेड कंपनीज हैं, कंपनीज दैट हैव बीन डीलिस्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, कंपनीज वेयर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड एंड इज बीइंग कैरिड आउट और एक्शन इज बीइंग टेकन। तो फीस क्या है? फीस टू बी पेड व्हाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम 5,000 रुपए है। एंड विद द पर्सन इज फॉरेन नेशनल या नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो जो इंडेमनिटी बॉन्ड है और या जो डिक्लेरेशन है उसको नोटराइज, अपोस्टलाइज और कंसोलिडाइज करना पड़ेगा, कंसोलेट से साइन करवाना पड़ेगा। और मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 248 क्या है? इट विल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड एट लीस्ट वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये कुछ प्रोविजंस हैं। अब जहाँ तक ये वाइंडिंग अप वाले प्रोविजंस है, वाइंडिंग अप तो खैर हम अलग से पढ़ेंगे, ये बेसिकली स्ट्राइकिंग ऑफ के प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो अलग से आएगा, हमारे बाद में आएगा। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट हमारी दी हुई है सेक्शन 447 टू 453। वाइंडिंग अप पे ये है, या तो डिफॉल्ट होगा कंपनी का, अगर डिफॉल्ट होगा तो आप आईबीसी में जाओगे, अगर आपने वॉलंटरीली लिक्विडेट करनी है तो भी आप आईबीसी में जाओगे। अगर डिफॉल्ट या वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अलावा कुछ चीज़ है वो यहाँ पर आएगी कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट की वाइंडिंग अप यहाँ पर, मतलब कंपनी की वाइंडिंग अप जो है कंपनीज एक्ट में भी हो सकती है और आईबीसी में भी हो सकती है। आईबीसी में दो सर्कमस्टांसेस हैं, डिफॉल्ट है या वॉलंटरी लिक्विडेशन। यहाँ पर कौन कौन से हैं कि भाई रजिस्ट्रार फील्स कि भाई कंपनी शुड बी वाउंड अप, आपने अकाउंट्स नहीं सबमिट किए, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है, या यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वो सारे प्रोविजन यहाँ पर है, वो वहाँ नहीं गए आईबीसी में। उसके बाद कुछ ये पनिशमेंट्स के सेक्शंस हैं। सेक्शन 447 इसमें डील करता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फ्रॉड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो पनिशमेंट होगी कितनी होगी, ये दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना है और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था कि नहीं था, ठीक है। अगर मान लो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है 10 lakhs और मोर और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, इसमें मिनिमम फाइन कितना होगा? अमाउंट ऑफ फ्रॉड के बराबर, जितने का फ्रॉड किया उतना ही मिनिमम फाइन होगा। और मैक्सिमम फाइन कितना होगा? 3 गुना, 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। और इम्प्रिजनमेंट है 6 months to 10 years। ये सब याद करने वाली बात है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है तो फाइन मिनिमम तो अमाउंट ऑफ फ्रॉड के बराबर रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा? 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। और इम्प्रिजनमेंट कितनी है? 3 साल से 10 साल। पहले वाले में जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था वहां 6 महीने से 10 साल थी, यहाँ पर 3 साल से 10 साल हो गई अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो, ठीक है। अब अगर जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वो 10 लाख से कम है और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेस एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उसमें फाइन है अप टू 50 lakhs और इम्प्रिजनमेंट है अप टू 5 years, ठीक है। उसमें 10 साल है, यहाँ मैक्सिमम 5 साल है। अप टू 5 years, अप टू 5 years का मतलब क्या है? अप टू 5 मतलब 1 महीना भी हो सकती है, मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम है। फिर 449 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, 3 साल से कम, 3 साल से 7 साल और फाइन होगा 10 लाख रुपए तक। 451 फिर बात करता है पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट, ठीक है, अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट हो गया, रिपीटेड डिफॉल्ट हो गया विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years, तो क्या होगा? डबल हो जाएगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन फॉर सच ऑफेंस इन एडिशन टू एनी इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। फिर सेक्शन 450 बात करता है कि पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड, तो उस केस में फाइन लग सकता है आपका 10,000 रुपए तक और कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन में 1,000 रुपए पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे। सेक्शन 452 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है? मिनिमम फाइन आपका 1 लाख है और मैक्सिमम है 5 लाख तक। एंड प्रॉपर्टी उसको वापस करनी पड़ेगी, या अगर प्रॉपर्टी वापस नहीं करता तो उसको जेल हो जाएगी 2 साल तक की। सेक्शन 453 बात करता है पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट। आप प्राइवेट लिमिटेड हो, आप पब्लिक लिमिटेड लिख रहे हो, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म लिख रहे हो प्राइवेट लिमिटेड, वो 453 में आता है। इट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 500 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज फॉर एवरी डे फॉर विच दैट नेम और टाइटल हैज बीन यूज्ड। उसके बाद एनसीएलटी और एनसीएलटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ये फिर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं या फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, ये उनकी हमने एक लिस्ट बना रखी है।
इसको आप देख सकते हैं, एनसीएलटी में खास बात नहीं है। अब इसमें जो है एनसीएलटी में होता है इसमें प्रेसिडेंट और एनसीएलटी में होता है चेयरपर्सन। हमारे इंस्टीट्यूट से उल्टा है। हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है कि जो बड़ी बॉडी है सेंट्रल काउंसिल, वहां पर क्या है प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, और जो रीजनल काउंसिल है वहां पर चेयरपर्सन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ एनसीएलटी छोटी है वहां पर प्रेसिडेंट है, और एनसीएलटी बड़ी है वहां पर चेयरपर्सन है। तो प्रेसिडेंट की कुछ क्वालिफिकेशंस भी है, क्या है वो होगा कि ही हैज बीन, हु इज और हु हैज बीन, ठीक है, प्रेजेंट या पास्ट जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, होल्ड ऑफिस एज सच फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। सोनी जी आप बता दीजिएगा अगर कोई चैट बॉक्स में हो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज कोई। जी सर ये 454 पे टेबल है या आपने जो अब दिखा रहे हैं कौन सा NCLT का, अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ ये 454 पर है ये टेबल। 454 मतलब सेक्शन 454 सेक्शन मुझे याद नहीं क्या है, सेक्शन ऐसा मुझे याद तो नहीं है, क्या सेक्शन नंबर। एजुकेशन ऑफ पेरेंटिस। नहीं, एनसीएलटी और एनसीएलटी हमारे कोर्स में है ना, मैं आपको चैप्टर नंबर बता दूं। अच्छा हाँ, ये मैं आपको यहाँ से किताब से देख के बता दूं, मुझे याद तो नहीं है चैप्टर नंबर क्या है। नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं सर, ये ऐसा जी चैप्टर नंबर 27 है ये। तो चैप्टर 27 पे जब आप जाओगे तो आपको सेक्शन नंबर, आप सेक्शन नंबर पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप? नहीं मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 454 चल रहा था ना अपना, तो ये टेबल जो है ये उससे कनेक्टेड है क्या 454 से? ना उससे कोई कनेक्टेड, वो तो पेनल्टी खत्म हो गया वो। हाँ वो तो यहाँ खत्म हो गया ना ये जी, वो ये यहाँ खत्म हो गया। अब ये नया आ गया एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। हाँ ठीक है, इसके ऊपर सेक्शन लिख रखे 407 से 434 तक के, ठीक है जी। हाँ, तो अब ये हम बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, या तो प्रेसिडेंट या पास्ट जज होगा हाई कोर्ट का फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल तक की टर्म होगी, एंड ही शैल होल्ड ऑफिस एज सच अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 67 years और अदर मेंबर्स अटेन एज ऑफ 65 years, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होगा 67 है, बाकी जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए 65 years की एज है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट द एनसीएलटी। ये जो एनसीएलटी और एनसीएलटी वाले प्रोविजंस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं, ठीक है। फिर जुडिशियल मेंबर जो है, जुडिशियल मेंबर इसमें हो सकते हैं, टेक्निकल मेंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, 11 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज है 50 years एंड अबव, ठीक है। तो जुडिशियल मेंबर जो होगा वो जज ऑफ हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट जज, या 10 साल की प्रैक्टिस होगी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। टेक्निकल में भाई proven ability, integrity, standing not less than 15 years, law, industrial finance, industrial reconstruction, industrial management और administration, ठीक है। ये पढ़ने वाली बातें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास ऐसी बात समझने वाली इतनी बात इसमें नहीं है, ना ही कोई खास बात याद करने वाली है। या इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो एज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है नॉर्मली, ठीक है, या नंबर ऑफ मेंबर से पूछ लेगा कि भाई कितने होने चाहिए। एनसीएलटी जो है इसका प्रिंसिपल जो बेंच है ये न्यू दिल्ली पे होगी, और अगर मान लो मेंबर्स जो वहाँ पर मेंबर हैं अगर उनमें कोई आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो मेजोरिटी से डिसाइड होगा, ठीक है। कोई अमेंडमेंट करानी है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, अपील करनी है अपीलेट ट्रिब्यूनल को होगी, कितने दिन में होगी, विद ए पीरियड ऑफ 45 days, एंड अगर आप अपील फाइल नहीं करते तो विद इन ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 days, ठीक है। इतना और एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। टाइम फॉर डिस्पोजल ऑफ सच एप्लीकेशन ये विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, और इन केस पिटिशन और अपील इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद द पीरियड ऑफ 3 months एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड फॉर नॉट एक्सीडिंग 90 days। तो 3 महीने का इनिशियल पीरियड है, 3 महीने तक की और एक्सटेंशन इसमें हो सकती है, ठीक है। सिटिंग आवर्स क्या है ये सारा आप ये तो देख सकते हैं, तो कोई खास बात ऐसी है नहीं, इतनी कोई समझने वाली चीज इसमें है नहीं। एनसीएलटी के हेड को कहते हैं चेयरपर्सन। इसमें क्या है, इनका भी टर्म 5 साल का होगा। आप दोनों को ना मिला के पढ़ लेना, एनसीएलटी और एनसीएलटी। तो एनसीएलटी में भी 5 साल का पीरियड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टिल कंप्लीशन ऑफ 70 years है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years एंड एज ऑफ 67 years है, ठीक है। अपील कितने दिन में होनी है, सुप्रीम कोर्ट में होनी है कितने दिन में, 60, वहां पर कितना था 45 था, यहाँ पर है 60। और अपील अगर फाइल नहीं है तो 60 days का और एक्सटेंशन भी मिल सकता है, वहां 45 था प्लस 45 था, यहाँ 60 प्लस 60 है, ठीक है।
Jurisdiction कैसे होगा? In case of an order against a company at the registered office of the company where it is situated. In case of an order against a person where the person concerned voluntarily resides, carries on business and personally works for gain. ठीक है जी, ये सब आप देख सकते हो वर्किंग डेज क्या क्या होते हैं, छुट्टी किस दिन होगी, कोई खास इसमें बात है नहीं। स्पेशल कोर्ट्स सेक्शन 435 टू 446, सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स, इट हैज द पावर, ठीक है। एंड पर्सन कंडक्टिंग ए प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट, उसको क्या कहा जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पावर्स होंगी उसमें। एंड एवरी ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट द ऑफेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 212 सबसेक्शन सिंस शैल बी डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कवर्ड इन सेक्शन 447 जो हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, कवरिंग ए फ्रॉड ऑफ 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। एंड पनिशमेंट फॉर एनी ऑफिसर फेलिंग टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर, इसमें 6 months की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग 1 lakh रुपीज और विद बोथ, ठीक है। और ये कंपाउंडेबल नहीं है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि आपको सजा के बदले फाइन दे दो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 or more persons फॉर कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशंस अराइजिंग आउट ऑफ दिस एक्ट, तो कंपनी प्रोसिक्यूटर होंगे उसमें। और इसमें क्या होता है कि ना आगे चलता है रास्ता, मतलब यहाँ पर तो क्या है फाइन दे के इम्प्रिजनमेंट होके हो गया, ये स्पेशल कोर्ट्स में क्या है, ये फिर आगे आपको ले जाते हैं सिविल कोर्ट्स में, मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, कितने मोटा ही फ्रॉड कर दिया तो वो यहाँ जाते हैं। Provisions of section 250 of the Code of Criminal Procedure shall apply mutatis mutandis to the special court and the court of sessions, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इसमें खास बात है नहीं। फिर चैप्टर 20 आता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप में मैंने बता दिया 2 चीजें हैं, कुछ प्रोविजन तो चले गए आईबीसी में, वॉलंटरी वाइंडिंग अप वहां चला गया और डिफॉल्ट वाला केस वहां चले गए। अगर डिफॉल्ट भी नहीं है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे हो सकती है? कंपनी अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है। अब ये वाला चीज भी वहां चलेगी, वॉलंटरी लिक्विडेशन वाली, कि कंपनी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इफ इट इज अदरवाइज सॉल्वेंट, तो वहां पर वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोविजन है सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी। इसमें कौन कौन से रह गए? कंपनीज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये वहां नहीं गया, ठीक है। एंड इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner or there was a fraud in formation management of the company, तो वो ये प्रोविजन यहीं पर है अभी भी। फिर सेक्शन 272 में पिटीशन लगेगी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी भी लगा सकती है, कंट्रीब्यूटरी भी लगा सकता है, रजिस्ट्रार भी लगा सकता है, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 274 क्या कहता है? इसमें पेनल प्रोविजंस हैं अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफिसर इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लीट अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। It is punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 5 lakhs or with both, ठीक है। ये सेक्शन 275 बात करता है कि लिक्विडेटर कौन अपॉइंट हो सकता है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से अपॉइंट हो सकते हैं लिक्विडेटर। सेक्शन 277 बात करता है इंटीमेशन ऑफ पासिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर, ये आपको इंटीमेशन देनी है विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days। फिर सेक्शन 277 कहता है कि विद इन 3 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए वाइंडिंग अप कमेटी एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लिक्विडेशन। फिर सेक्शन 277 बात करता है कंपोजिशन ऑफ पर्सन्स इन वाइंडिंग अप कमेटी। ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा जो अटैच टू द ट्रिब्यूनल होगा। जो ट्रिब्यूनल होता है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिक्विडेटर वो अपने अपॉइंट करके रखते हैं, उनमें से यहाँ अपॉइंट कर देते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। फिर नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं ट्रिब्यूनल में, वो जहां जहां जरूरत होती है वहां उनको अपॉइंट करते हैं। एंड ए प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। सेक्शन 278 फिर बात करता है ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड ऑल द कंट्रीब्यूटर्स एज इफ इट हैज बीन मेड ऑन देयर जॉइंट पिटीशन। सेक्शन 279 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप और अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रोविजनल लिक्विडेटर। तो नया कोई सूट फाइल नहीं हो सकता, अगर कोई पेंडिंग है तो ये आपको उससे ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड नो इफेक्ट ऑन दी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, ये सब आप देख सकते हो, इनको खास ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं, ठीक है।
ये सारी चीजें वहां चली गई अब आईबीसी में। इसको आप देख लीजिएगा, हमने चार्ट बना रखा है, वो खास ऐसी समझने वाली चीज है नहीं। या तो कुछ आपको याद करना है, वो आपको जैसे डेज वगैरह वो आपको याद करने हैं। इसके बाद आता है जी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब इसमें कुछ एक तो बेसिक फैक्ट्स हैं। बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि एलएलपी जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप कोई लीगल एंटिटी नहीं है, उसमें क्या है कि उनमें तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इट इज अ लीगल एंटिटी। ठीक है, ये एमसीए के थ्रू गवर्न होती है और कॉर्पोरेट बॉडी है। ठीक है, एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, और एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इट शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। एलएलपी एक्ट से इसके प्रोविजंस गवर्न होते हैं 2008 से। तो एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी ए पार्टनर इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, कोई इंडिविजुअल कब नहीं बन सकता पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी? आई फील अगर अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या उसने अप्लाई किया हुआ है इंसॉल्वेंट होने के लिए। एचयूएफ नहीं बन सकती। एचयूएफ पे बहुत सवाल पूछते हैं। एचयूएफ कैन नॉट बिकम पार्टनर इन एलएलपी। एट लीस्ट 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एलएलपी। 2 पार्टनर तो कम से कम चाहिए। एंड इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 2 एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months while the number is so reduced, जो पर्सन है, ठीक है, he will be personally liable। ठीक है, वो तो प्रोप्राइटरशिप ही हो गई ना, एक ही रह गया। फिर उसके अलावा कुछ इसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। पार्टनर अलग है एलएलपी में और डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग है। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसे ही समझ लीजिए जैसे डायरेक्टर है। ठीक है, तो इसमें डी पिन लेना पड़ता है। जैसे वहां पर डिन है, यहाँ पर डी पिन आर दे आर रिक्वायर्ड इन एलएलपी। अगर डिन है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। Every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be a resident in India। तो 2 जो हैं कम से कम designated partner होंगे जो इंडिविजुअल होंगे। कंपनी भी इसमें हो सकती है, लेकिन 2 तो इंडिविजुअल चाहिए और उनमें से कम एक जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। इसका मतलब एक बाहर का भी हो सकता है। इन एन एलएलपी वेयर ऑल द पार्टनर्स आर बॉडीज कॉर्पोरेट। ठीक है, मान लो सारी कंपनियां उसमें पार्टनर है, तो जो नॉमिनीज हैं सच बॉडीज कॉर्पोरेट दे विल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एंड ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल विद रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु हैज गिवन हिज कंसेंट टू एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एलएलपी का। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं, कोई मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे अगर कोई पार्टनर इफ ही सीजेस टू बी ए पार्टनर या कोई चेंज हो गया नाम और एड्रेस में, वो एक रजिस्ट्रार के साथ फाइल करेगा नोटिस इसका विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। ठीक है भाई, मैं नया पार्टनर बन गया हूँ या मेरा एड्रेस चेंज हो गया या आई हैव सीज्ड टू बी ए पार्टनर। अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेंशन करती है सेक्शन 24(2) का जो इन्फॉर्मेशन की बात करता है, तो उस केस में क्या होगा? इसमें पेनल्टी है 2000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक। ठीक है, एलएलपी का पार्टनर का सेसेशन कब होगा? व्हेन ही विल सीज टू बी ए पार्टनर, जब उसकी डेथ हो जाए या डिसोल्यूशन हो जाए एलएलपी का, या अनसाउंड माइंड का हो जाए, या उसने अप्लाई कर दिया है कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, जो भी उसका पार्टनर एलएलपी का, वो एलएलपी को ही इन्फॉर्म करेगा अगर उसके नाम या एड्रेस में कोई चेंज हो गया 15 दिन के अंदर। इसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन हो तो 2000 से 25,000। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां एलएलपी इन्फॉर्म कर रही है किसको? रजिस्ट्रार को। ये 30 days है। पहले में पार्टनर इन्फॉर्म कर रहा था एलएलपी को, वहां 15 दिन है। यहाँ एलएलपी इन्फॉर्म कर रही है रजिस्ट्रार को, यहाँ पर 30 दिन है। फाइन वही है 2000 से 25,000। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो एजेंट है, एजेंट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। जैसे वहां पर क्या है, वहां पर तो क्या है, ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनरशिप में। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है वो, बट ही इज एन एजेंट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है,
and every partner of a limited liability partnership is for the purpose of the business of the limited liability partnership agent, ठीक है, लेकिन दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया जो कि बिजनेस से पर्टेन करता है, एलएलपी का बिजनेस वही है या उसकी अथॉरिटी से, तो एलएलपी लायबल होगी, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली बात ये कर रहा है कि पर्सनली लायबल कब होगा और कंपनी एलएलपी कब लायबल होगी। अगर पर्सनली लायबल नहीं होगा अगर फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 सोलली बाय रीजन ऑफ बीइंग ए पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कोई भी काम करेगा तो उसके लिए पर्सनल लायबल नहीं होगा, ठीक है। एलएलपी को अपनी बुक्स रखनी है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, डबल एंट्री कैसे भी रख सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखनी है। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है इनको क्या करना है, दे हैव टू साइन एंड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है, 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ये आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है। पैनल प्रोविजन है इसमें, अगर नहीं आप कंप्लाई करते तो 20,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का फाइन है। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, और इसमें फाइन है 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 8 साल तक रखनी है, कंपनी में पढ़ा हमने 8 साल तक की थी। ऑडिट कब करवाना है, ऑडिट करवाना है अगर आपको टर्नओवर जो है वो 40 लाख रुपए से एक्सीड करती है या कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख रुपए से एक्सीड करता है, तो आपको ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं कराना। ये फिर कुछ फाइलिंग फीस वगैरह है, आप देख सकते हो, उसमें खास बात नहीं है। फिर ये कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है, चेंज के लिए ये सारी चीजें, इसमें अलग अलग फॉर्म्स दे रखे हैं हमने, ये फाइलिंग फीस है सारी। उसके बाद फॉरेन एलएलपी, ये फॉरेन एलएलपी भी बड़ा एक डियर टॉपिक है एग्जामिनर्स के लिए, पूछ लेते हैं सवाल इस पे। तो सेक्शन 2M इसकी बात करता है एलएलपी की, ये कि फॉरेन एलएलपी क्या हो सकती है, इट्स ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जिसका कि प्लेस ऑफ बिजनेस हो विद इन इंडिया, वो है फॉरेन एलएलपी, ठीक है। तो फॉरेन एलएलपी बनाने के लिए सेक्शन 59 है एलएलपी एक्ट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि दे विल मेक रूल्स रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन एलएलपी। एक तो बात ये है कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग नेम है उसको रिजर्व करा सकते हो 3 साल के लिए। रूल 16(3) बात करता है कि जो फॉरेन एलएलपी है या फॉरेन कंपनी है 200 रुपये देगी फॉर्म 25 में, और फॉर रिजर्विंग इट्स एग्जिस्टिंग नेम बाय विच इट इज रजिस्टर्ड इन द कंट्री ऑफ इट्स रेगुलेशन। कोई कंपनी या एलएलपी यूके में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो वो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए यहाँ भी एप्लीकेशन दे सकती है, ठीक है। ये 3 साल तक वैलिड रहेगा, बट इट में बी रिन्यूड। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं, ये चैप्टर 11 बात करता है एलएलपी रूल्स का, डेल्ट विद फॉरेन। जो अब आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब आपको एक्ट पढ़ना है तो साथ में रूल्स भी पढ़ने हैं। जैसे कंपनीज है, कंपनीज में भी रूल्स भी पढ़ने हैं आपको, ऐसे एलएलपी में भी रूल्स भी पढ़ने हैं। कई बार आप पूरा एक्ट पढ़ लेते हो, सोचो यार ये तो चीज कहीं लिखी नहीं है, तो ये चैप्टर 11 में है एलएलपी रूल्स में, ये फॉरेन एलएलपी से बात कर, फॉरेन एलएलपी के बारे में बताता है। वो कहता है कि फॉरेन एलएलपी शैल विद इन 30 डेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी एप्लीकेशन फॉर्म 27। उसमें क्या क्या देगी, एक तो ये कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, फुल एड्रेस इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, वहां पर क्या एड्रेस है उसका, यूके में है तो वहां का एड्रेस, फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द एलएलपी इन इंडिया, जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, और जो उसके पार्टनर्स हैं या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, एंड नेम ऑफ एड्रेसेस ऑफ 2 और मोर पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एलएलपी सर्विस ऑफ प्रोसेस and any notices or other documents required to be serviced on the LLP। अब इसमें ये है
कि वो अगर कॉमनवेल्थ से बाहर है तब क्या पोजीशन है, और कॉमनवेल्थ के अंदर जो कंट्री आते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है, इसमें नोटराइज कराना है, उसमें अपोस्टलाइज कराना है। ये अटेस्टेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज है। फिर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म 27 में है इसका, ये इट विल इशू ए सर्टिफिकेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय द फॉरेन एलएलपी पार्टनरशिप इन फॉर्म नंबर 30। तो रजिस्ट्रार जो है फॉर्म 30 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, एप्लीकेशन है फॉर्म 27 में। अगर कोई ऑल्ट्रेशन होती है तो फॉर्म 28 में ऑल्ट्रेशन फाइल करेगा विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अगर कोई अल्ट्रेशन होती है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, जो बाहर वाला था सर्टिफिकेट, उसमें कोई हो जाती है, या जो नेम एंड एड्रेस आपने दिए हुए थे भाई इनको नोटिस मिलना है, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन एलएलपी इन इंडिया, तो इसके लिए फॉर्म 29 है, ठीक है ना। और ऐसे ऑल्ट्रेशन आपको विद इन 30 डेज फाइल करनी है। अदर मैटर्स, आपको नेम ऑफ फॉरेन एलएलपी और कंट्री जहां पर ये एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है वो भी लिखना है आपको। लेजिबल इंग्लिश, कैरेक्टर्स इन ऑल इनवॉइसेस, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड पब्लिकेशन। अगर फॉरेन एलएलपी ने इफ इट सीजेस टू हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये रजिस्ट्रार को नोटिस देगी फॉर्म 29 में विद इन 30 डेज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट होगा, हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली थ्रू द पोर्टल मेंटेन्ड बाय द एमसीए ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है। तो ये कुछ फॉरेन एलएलपी के बारे में था। तो अब आपका ये सारा पोर्शन हो गया खत्म, कंपनीज एक्ट और एलएलपी। कल हम क्या करेंगे, कल हम इसमें करेंगे इसकी केस स्टडीज पहले, ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट को भी इसके साथ ही हम कंबाइन कर देंगे। जो मैंने कल आपको केस स्टडीज वाला वो दिया था ना, उसमें क्या हुआ, फिर मैंने उसको स्टडी किया। कुछ चैप्टर्स उसमें ऐसे हैं कि वो वैल्यूएशन वाले सिलेबस में है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैंने उस पीपीटी को, जो केस स्टडीज वाली पीपीटी थी, थोड़ा सा अमेंड किया उसको। वो जो यहाँ पर हमारे सिलेबस में नहीं है उन पोर्शंस को मैंने निकाल दिया है। तो मैं वो पीपीटी आपसे दोबारा शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। तो उसको आप